From despair and anxiety after her husband's death to this, becoming an Usha Silai school teacher and a local resource person, it has been a remarkable decade for 41-year-old Salma Banu from Uttar Pradesh's Raebareli district. From a poor family, Salma grew up facing a lot of hardship. After her father's death, her younger brother supported her education, but she could only complete high school and was married at the age of 18. Financial instability was a part of her married life too, but that wasn't the end of her troubles. She had to witness her husband's death due to ill health, after which the entire responsibility for her two children and their education and other household expenses fell on her. She was also a victim of domestic abuse at the hands of her in-laws, which led her to live separately with her children. Salma was looking for livelihood, and since she had studied till high school and had basic understanding of sewing, she worked on some projects with a local NGO. But after 2 to 3 years, the project wound up. A few years ago, Salma came to know about the Usha Silai School program in Raebareli and was selected for a training which would help her open her own school. There has been no looking back for Salma after that, and she has since seen a series of successes and a much improved financial situation. जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे तो सर मैं एक माह के बाद जब यहाँ जगतपुर आई थी तो सर मैं बहुत परेशान रहती थी और सर मेरे पास केवल 45 रुपये था। सिर्फ 45 रुपये था। तो कैसे मैनेज किया? तो सर फिर मेरे सामने एक चाची थी, उनसे पैसा लेके और सर हमारे मायके वाले ने, भैया लोग ने, सब लोग साथ दे के क्रियाकर्म किया। फिर जब जगतपुर आई तो हमारे एक दीदी थी, बैंक में समूह सखी बैठती थी, तो वो हमको श्री अनिल दुबे सर के पास लेके गई, जो सर हमारे सामने खड़े हुए हैं। इन्होंने हमको बहुत बड़ा हौसला दिया और हमारी CRP की ट्रेनिंग चल रही थी तो महिलाएं, मैं बैठी रोया करती थी तो महिलाएं हमको उठा के गीत है, डांस है, कैसे भी हमको हंसाया करती थी, कभी हमको एहसास नहीं होने दिया। हमारे आंसू पोंछने में सभी महिलाएं और हमारे सर का अहम मुद्दा था। ऐसा लग रहा है कि हम आधी मंजिल चढ़ गए हैं। सब बड़े शहर जाएंगे, अपने बच्चों को और आगे बढ़ाएंगे। हमारी लड़की BA कर चुकी है, अब ये सोचे हैं कि अपनी लड़की को और आगे बढ़ाएं, और लड़का को मैं सोचे हूँ सरकारी जॉब आर्मी की तैयारी करवा रही हूँ। और सर मैं इसी अपने दम पे ही सर मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास 45 रुपये था, आज मेरे पास मैंने प्लाट ले लिया है, इसी प्रॉपर जगतपुर में है। Over the years, Salma increased her skill and knowledge by participating in different capacity building programs such as the Life Skill Training Program, Master Trainers Training Program, and she has now taken on a new role and responsibility of being an LRP or Local Resource Person. This means that Salma can now conduct short and long-term training courses for other women across Uttar Pradesh. She now has the experience of conducting short-term or satellite Silai school training of 55 teachers in 5 batches and classical or longer duration Silai school training of 80 teachers in 7 batches. सर ये रोटी का डिब्बा है, इसमें ऐसे डलिया में रखते हैं तो हवा लगती है। Salma is also giving hand-holding support to more than 200 teachers through phone and WhatsApp groups. She is also innovating with new ideas and designs for the benefit of the program, using digital technology very confidently, and is always ready to take on new responsibilities in the program. Apart from financial stability and respect, she has earned her identity as a trainer, motivator, and counselor.
सिलाई तो बहुत अच्छी आपने हमारे अंदर जो हुनर है हमारे तक सीमित रहेगा, वो उसको हम कितना करेंगे और दूसरों को बताएंगे तो हम आगे भी बढ़ सकते हो। हमारे साथ में जो 4 लड़कियां हैं वो भी आगे बढ़ेंगी और उनका भी रोजगार चलेगा। और जैसे हमारी कुछ लड़कियां हैं जो हमारी दीदी हैं, दुल्हन है, नहीं आ सकती, तो उनके घर भी जाके मैं बता के आ जाती हूँ। सर कुछ मुश्किल होता, कुछ आराम होता है सर। अब जो कभी मशीन नहीं चला, कभी सुई नहीं पकड़े, तो उसके लिए थोड़ा तो दिक्कत आती ही है सर। सबसे ज़्यादा सर हमारे अंदर हिम्मत आई। जब हमको बाहर जाना है तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं बाहर जा सकूं। मगर आज उषा के माध्यम से, उषा की देन है जो मैं बाहर जाती हूँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। जैसे सबसे पहले मैं सोनभद्र गई हूँ, फिर गोरखपुर गई हूँ, चंदौली गई हूँ, उसके बाद बहराइच गई हूँ। ऐसे हमारी हिम्मत धीरे धीरे उषा ने के माध्यम से हमारी हिम्मत बढ़ती गई और मैं अकेले आना जाना शुरू कर दी हूँ। हमारी 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, एक क्लासिकल होती है, एक सैटेलाइट होती है। सैटेलाइट में 2 दिन की ट्रेनिंग होती है और क्लासिकल में हमारे 9 दिन की होती है, जिसमें 2 दिन हमारा टेक्नीशियन होता है जो मशीन के पूरे पार्ट के बारे में बताया जाता है। मशीन जब न्यू मशीन रहती है तो उसको हम कैसे खोले, कैसे बनाए, जैसे बिगड़ गई तो कैसे बनाए, सुई के प्रकार सब वो टेक्नीशियन बताते हैं। उसके बाद मैं 2 दिन के बाद फिर मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले उनको कढ़ाई के टांका के बारे में बताती हूँ, टांका कैसे लगाना है, साथ साथ उनको मशीन के चलाने भी बताती हूँ। Currently, 10 learners attend Salma's Silai School. She charges rupees 250 a month from each learner and rupees 50 as an admission fee. She is now earning 2,500 rupees from learners and 8,000 rupees from stitching work. On an average, she earns 8,000 to 10,000 rupees a month from her Usha Silai School. जब कोविड आया है तो कोविड में सर सारी दुकानें तो अचानक बंद हो गई थी। तो सर मेरे पास अब उतना बैलेंस भी नहीं था, मगर फिर भी जो बैलेंस था, बच्चों के स्कूल भी बंद हो गए तो फीस का भी पैसा बचा हुआ था। तो सर मेरे पास जो कपड़े बचे हुए थे तो सर सबसे पहले मैंने मास्क बनाना शुरू कर दिया। जो कपड़े बचे थे तो मैंने उसको बांटे और कुछ गाँव में सर कुछ बेची भी। हाँ सर, कम से कम 15 से 20 हज़ार की मैं मास्क भी बेची। सिलाई स्कूल कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग इनको उद्यमी महिला उद्यमी बना रहे हैं, पहली बात। और जब ये महिला उद्यमी जब बनी तो इसमें से कुछ ऐसी भी महिलाएं थीं जिनके अंदर एक कह सकते हैं कि अलग तरीके की लीडरशिप थी। तो उन्होंने अलग अलग जिम्मेदारी लेनी शुरू की, उन्होंने काउंसलिंग शुरू की, कई सारे और महिलाओं को मोटिवेट करना शुरू किया। तो जो जिम्मेदारी लेने लगे उनके अंदर तकनीकी हुनर थे कुछ अलग तरीके के। तो फिर उसी में से कुछ ऐसी महिलाओं को हम लोगों ने मास्टर ट्रेनर की तरह उनकी सोइंग और जो स्टिचिंग की स्किल्स से उसको और बढ़ाया हम लोगों ने। तो बेसिकली LRP हमारे वो वही महिलाएं होती हैं जो हमारी ऑलरेडी सिलाई स्कूल टीचर्स हैं, जो महिला उद्यमी हैं। और हम ये देखते हैं कि कम से कम वो 3 साल ऑलरेडी हमारा ये सिलाई स्कूल का कार्यक्रम से जुड़ी हुई हो और वो स्कूल का कार्यक्रम अच्छे से चला रही हो, जिसके यहाँ नियमित बच्चे आते हों, बच्चों को सिखा रही है, साथ साथ वर्क ऑर्डर करती है हो और उसके अंदर नेतृत्व हो। LRP हमारे कार्यक्रम की रीढ़ है। ये हमारा जो LRP है ये अपने आसपास के गांव के अंदर जो क्लस्टर है, क्लस्टर ऑफ विलेज है, उसको सपोर्ट करेगा। हम इसको ब्लॉक स्तर पर देख रहे हैं, हम जिले स्तर पर देख रहे हैं। जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उनके माध्यम से हम चाह रहे हैं कि सारे महिला उद्यमी उससे कनेक्ट हों। Today, a confident Salma not only manages her training and stitching, but also steps out regularly to mobilize other women, encouraging them to be self-employed and learn a new craft. Salma has got a lot of support in her initiatives, not only from Usha, but also from the local government representatives. जैसे अब हम जाते हैं इनके पास, सीख लेते हैं सिलाई, कि हम दूसरा सिलाई सेंटर खोलते हैं, 4 महिलाओं और बटोरते हैं, फिर वो सिखाती हैं। ऐसे ऐसे बढ़ती जाती हैं तो जनसंख्या बढ़ती ही जाएगी औरतों की और जागरूक होती चली जाएंगी। अरे बहुत अधिक ज़रूरी है कि अपने पैसा कुछ कमा सके अपने लिए। जो महिलाएं हैं वो अपने घर पे मतलब जो सिलाई करेंगी तो जो रोज़गार के लिए उसमें जुड़ जाती हैं, रोज़गार से जुड़ जाती हैं। थोड़ा सा मतलब जो पैसा है वो आने लग जाता है। और जो गवर्नमेंट के द्वारा कोई कभी टेंडर होते हैं, जैसे स्कूल की ड्रेस वगैरह बननी है, वो हम लोग उसको मतलब दे देते हैं टेंडर के तौर पे। कभी कोई और योजनाएं आती हैं टेंडर के तौर पे तो हम मतलब महिलाओं को इकट्ठा करके उन लोगों को मतलब सिलाई के दौर में जोड़ देते हैं। फैमिली में अधिकांश क्या है, महिलाएं आजकल, अब पहले जो थी वो घर में थी, धीरे धीरे रोज़गार से जुड़ रही हैं,
उनको भी अच्छा लग रहा है, फीलिंग आ रही है कि प्रकार से हम भी मतलब कुछ कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। मैं तो यहाँ 2 साल से देख रहा हूँ, महिलाओं की ज़िंदगियाँ बदली हुई हैं। सलमा, उनके लिए उनकी जो उनका सिलाई सेंटर है वो सिलाई करती हैं, तो उन लोगों को हम लोगों ने जो गवर्नमेंट का टेंडर था पूरा उनको दे दिया था झंडा बनाने के लिए, तो वो बनाई हैं और उस जो गवर्नमेंट से प्रॉफिट उनको हुआ है, उन मेहनत की है, उन्होंने बनाए हैं। टारगेट हम लोगों का जो दिया गया था वो टारगेट उन्होंने समय पर पूरा किया है। और हम भी ये भी सोचते हैं कि आगे समय में कोई और योजना आती है तो उनको फिर से उसी में इन्वॉल्व किया जाए। The other aspect of Usha's intervention in Uttar Pradesh's rural areas, training the LRPs or local resource persons themselves. This get-together and training workshop was organized by Usha in collaboration with the Sarvodaya Ashram in Hardoi district. The Sarvodaya Ashram is a prominent voluntary organization founded in the 1980s in Hardoi that works in various projects of land development and education, and has also given space for Usha's training cum production center at their sprawling Hardoi campus. Among the local resource persons who attended this training are Anti Devi, an Adivasi from remote Sonbhadra in eastern UP, and Annapurna Devi, a qualified teacher from Varanasi, who says her first love is stitching. Anti Devi's husband, who worked as a driver, died in September 2021. But Anti, who has been stitching since 2011 and supports 2 children and at least 3 other family members, did not lose hope and kept doing what she does best, working and training other women as an LRP. Today, she earns 15 to 16,000 rupees monthly and employs 4 to 5 people. मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तुम्हारे पास इतना गुण है, वो जानते थे कि मैं इस पार हो जाऊंगा, लेकिन कहते थे कि तुम इसी घर में रहना और यहाँ से कहीं मत जाना। हमारे यहाँ सोनभद्र में सर ज़्यादा आदिवासी वहाँ हैं रहने वाले। आदिवासी लोग सर घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलने को उन लोग को चांस दिया जाता है। जैसे किसी का पति वहाँ डांस डाल दे, किसी का परिवार फैमिली कह दे कि नहीं जाना है इस जगह पर, तो उन लोगों को सर मैं अपने यहाँ बैठा कर या अपने सिलाई में अपने दुकान पे लाकर मैं उन लोगों को समझाती हूँ, दिखाती हूँ किस तरीके से सिलाई करिए, इस तरीके से सीखिए, सीखने दीजिए। जैसे हमको घर से कोई बंधन नहीं है, आज मैं खुद को चलकर कमा रही हूँ, फ्री में सिखाएंगी कि पैसा लेकर सिखाएंगी। मैं बोली कि 100 रुपया मुझे फार्म का पैसा लगेगा और 200 रुपया मैं पैसा लूँगी, क्या कहते हैं कि महीना फीस। For Annapurna Devi from Varanasi, the circumstances were a little different. Her husband is an astrologer and she comes from a lower middle class family. But disagreements with her in-laws meant that she and her husband moved to an independent house a few years ago. This made life difficult for the couple and their 3 children amid rising prices and the COVID pandemic, which was a further blow. After Annapurna's association with Usha and her LRP or local resource person training, she has 9 machines at home and taught 31 women in the last month. Annapurna also got an order for 1,000 flags during the recent Har Ghar Tiranga program by the government. सर उससे पहले जैसे कोई उसका शेड्यूल नहीं था, कोई तरीका तौर नहीं था कि कैसे सिखाना है, क्या क्या स्टेप होना चाहिए, 6 महीने के कोर्स में क्या क्या लड़कियों को बताना है। तो जब मैंने ये उषा से ट्रेनिंग ली तो उसमें हमें ये सब जानकारियाँ दी गई कि स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या क्या सिखाना है, उसका गाइड भी हम लोगों को प्रोवाइड किया गया और उसमें हम लोगों को मशीन कि रिपेयरिंग के बारे में भी बताया गया। बहुत जगह अभी ये प्रचलन है कि बहुएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, तो उन बहनों को हम घर जा कर के होम ट्यूशन देने का काम शुरू किया। सौभाग्य है कि हम उषा से जुड़े और इतना मतलब आगे बढ़े, वो उमंग शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते। इतनी खुशी मिली थी, 2-2 बजे रात तक हम लोग सिलाई करते थे। कम समय अवधि कम थी और हम लोगों को 1000 तिरंगा कंप्लीट करना था। अपनी बच्चियों को मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिया और मशीनें सारी सुचारू की कि अपडेट मतलब सब चलती रहें,
रुकने का नाम ना लें। और मशीनों ने भी हम लोगों का साथ दिया तिरंगा फहराने में, और घर घर तिरंगा वितरण में भी बहुत आनंद आया। छोटे छोटे बच्चे जब ले करके उसको झंडे डंडे में लगा करके दौड़ रहे थे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सो वो आनंद अंतरात्मा को छू गया था। Usha says that in the coming years the program will be expanded and the local resource person will be a channel for information flow, data collection and new initiatives between Usha and the women entrepreneurs. An LRP would be a Silai school woman from the community itself, well versed with the local language and community. This will prove to be a very effective mechanism of communication for the development of Silai school women. Over a period of time, the capacities of the LRPs would be built to enable them to perform many activities, be a channel between Usha and other Silai school teachers, linking the Silai school to more earning opportunities, conducting awareness sessions and other engaging activities as planned by Usha, share progress of Silai school women, support women in combating family and community issues. LRPs also work as trainers. When women engage meaningfully through leadership positions, we tend to move closer in advancing social justice and gender parity. Through the Silai School program, we have been capacitating women to emerge as resource persons and also preparing them for the next level of leadership. Women as leaders tend to have a greater social impact and also prove to be more transformational and inspirational for the people whom she leads. In the coming years, LRPs will be supporting income-generating activities of women entrepreneurs by increasing their own technical competencies, establish much-needed local knowledge and disseminate new knowledge and skills among them. In the longer run, they will aid in ensuring sustainability of program operators, a much-needed intervention for women in India's rural areas. तारा बनूंगी मैं, सहारा बनूंगी, तारा बनूंगी मैं, सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। Disability, the very word, is quick to suggest a person's inability to do things. Sometimes people can be disabled by their struggles, and sometimes their physical disability can become a persistent struggle. Every time we call someone disabled, we unknowingly limit their personality to their condition. Meena has been battling and continues to battle the social prejudice surrounding disability for 42 years, but she chooses to smile through her sorrows. In the past 7 years, she has transitioned from an Usha Silai school learner to a master trainer and is now working as a local resource person. मैं सिलती भी हूँ, सिखाती भी हूँ, और जो औरतों को कुछ भी करना हो लेकिन घर में से निकलने की दिक्कत होती हो, उनके घर भी मैं जाती हूँ। मैं फील्ड वर्क भी करती हूँ। जिसको जो भी दिक्कत हो, जैसे औरत होती है उसको बोलता है कि मुझे सिलाई काम पसंद है लेकिन बाहर नहीं निकलने देते, मेरे पास मशीन नहीं है, तो मैं उनको घर जाके मैं समझाती हूँ कि आप ये करो, उसको ये करने दो। मैंने 200 लोगों को ट्रेन किया, 200 औरतों को, बहनों को, उसमें बच्चियाँ भी है 18-20 साल की, वो सारी मैंने 200 बहनों को मैंने तैयार कर दिया। Meena and several other women in the villages will soon be a major driving force behind the Usha Silai schools of the future. Usha created the local resource person model to establish a connection between the NGO partners, the beneficiaries, the master trainers and the community at large. The local resource persons, or LRPs, help with the dissemination of information and data to keep their 10 lakh learners connected. सभी प्रकार की बहनों के साथ हमको जुड़े रहने के लिए ये एक थॉटफुल प्रोसेस का एक मॉडल है, लोकल रिसोर्स पर्सन मॉडल है।
इसमें हम ये है कि एक सब्स्टिट्यूट की तरह से ये लोकल रिसोर्स पर्सन काम करेंगे। जैसे हमने एक ट्रेनिंग करवाई है 10 बहनों की, उसमें से 5 बहनों में से एक लोकल रिसोर्स पर्सन हम चूज़ कर लेते हैं। वो होता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में, क्योंकि हम उनकी स्किल्स देख लेते हैं कि कौन अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है, कौन कॉन्फिडेंस गेन किया है और ये काम करने में उत्साही है। तो उसी दौरान हम लोकल रिसोर्स पर्सन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं अभी, और उनको ही ये पूरा हम ट्रेन करते रहते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करते रहें कि कैसे आप विज़िट करेंगे, क्या क्या चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करेंगे, कोई नया कुछ काम किया है तो कैसे करेंगे, अगर इनकम बढ़ानी है तो क्या क्या सोर्सेस आप सोच सकते हैं। Meena's limbs were paralyzed at the age of 3 due to polio. She lived the majority of her childhood dependent on her family. Even marriage didn't fare well for her. Once she had given her husband what he wanted, a son, she was disposed of. But now she runs a production center and earns her livelihood from making aprons for operation theatres, eye towels and several other articles for hospitals in Gujarat. Meena has struggled a great deal and will continue to struggle, but she has embraced her struggle. पहले मुझे लगता था कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, कब ख़त्म होगी, मैं जल्दी से मर जाऊँ। और अब लगता है कि ज़िंदगी कितनी छोटी है, मुझे और जीना है, मुझे औरतों के साथ, ये बहनों के साथ और ज़्यादा काम करना है। बहुत प्राउड फील होता है, सुबह शाम मुझे यही लगता है कि मैं यही करूँ, कुछ नया करूँ। औरतों को मुझे जो दिक्कत हुई है वो उनको ना हो, मेरी कोशिश यही है। इनको भी मैं सिलाई भी सिखाती हूँ, और पढ़े लिखे ना हो तो उनको ट्यूशन क्लासेस भी मैंने बहुत सारी बहनों को जो घर बैठे करे ऐसा भी मैंने जुगाड़ उन सबको करवा दिया है। बीपीए और उषा ने जॉइंट होकर जो ये बहनों के लिए जो ये किया प्रोग्राम, वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं उनको बार बार धन्यवाद हर सुबह में देती हूँ कि ये आया नहीं होता तो मुझे कुछ नहीं आता। ये सिलाई मैंने सीखी और सारे को सबको सिखाया, और ये प्रोग्राम में अभी और आगे जाके बहुत बड़ा प्रोडक्शन सेंटर बनाने का सोचती हूँ मैं। इससे बहुत सारी औरतों को रोजी रोटी भी मिल जाएगी और कुछ ना कुछ नया सीखेगी। हर बार उषा ने कुछ नया किया है।